Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with topic 1, second session, bilingual revision. Here once more I have shown EWT concept where E is efficiency, W is work, T is time. If we expose ourselves, it is very easy to understand and remember. Look at your left hand. You can see the watch on your wristwatch. Left hand shows time and right hand efficiency of the worker. Whomsoever is doing any work, most of the time he does it with right hand. So these right hand and left hand are very close to each other and gives these three results, that is efficiency into time, means your left hand multiply by your right hand gives the work units, and W divided by T equal to efficiency, means total work units divided by time gives the efficiency of the worker, and work divided by efficiency gives time units. Here the word unit is repeated, so we must know this unit is related to the one which is used in the question, like days, then the unit will be days. If it is used hours, then it will be hours. If it is used minute, then it will be minutes, and likewise. And also I have again emphasized on combined workers working, means there may be two set of workers in which number of months, days or hours may be varied, means may be changed, but when it comes to the set of work, it automatically takes the equalized position. So let us see once more the revision of second session. Example 1. Hari is twice efficient than Radhe. Radhe can do a work in 16 days, then in how many days Hari will do that work? उदाहरण 1. हरि राधे से दोगुना काम करता है। राधे एक काम को 16 दिन में कर सकता है, तब हरि उसी काम को कितने दिनों में करेगा? First of all, let us see whether calculation is needed here. To me, calculation is not needed. If we are well versed with the contents of the topic 1 that we have discussed. Still, let us see the solution. आइए हल देखते हैं। यहाँ राधे आदमी है, मैन है, जो कि काम को करने में 16 दिन लेता है,
एक काम को करने में 16 दिन लेता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? कम करेगा, यानी कि 1/16 काम करेगा। और एक दिन में वो जितना काम कर रहा है वही उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है। अब जैसा कि कहा गया है कि राधे के मुकाबले हरि की कार्यक्षमता दोगुनी है, तो स्वतः ही हरि की कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी 2/16 हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हरि और राधे दोनों के ही केस में डिनोमिनेटर यानी कि हर 16 है, तो हमको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट है कि जो एलसीएम है वो 16 ही आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एफिशिएंसी है राधे की वो 1 आएगी और हरि की एफिशिएंसी 2 आएगी, और टोटल वर्क यूनिट्स यानी कुल कार्य 16 यूनिट्स आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 16 विभाजित 1 बराबर 16 दिन का समय आएगा राधे के लिए, 16 विभाजित 2 बराबर 8 दिन का समय आएगा हरि के लिए। यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि हरि राधे के मुकाबले 2 गुना समय ले रहा है काम को पूरा करने में, क्योंकि नहीं 2 गुना नहीं, आधा समय ले रहा है काम को पूरा करने में, क्योंकि 8 दिन ले रहा है तो 8 16 दिन का आधा होता है। और जो राधे है वो हरि के मुकाबले 2 गुना समय ले रहा है। यहाँ पर कृपया नाम आगे पीछे होने से बोलने में आगे पीछे कुछ हो सकता है, जैसे 2 गुना राधे के लिए बोलना था लेकिन बोल गए हरि के लिए, हरि के लिए बोलना था राधे के लिए बोल गए, तो ये ऐसे भ्रमित ना होइएगा। आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए लिखे हुए को देखकर भी समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है कि राधे समय 16 दिन ले रहा है, हरि 8 दिन ले रहा है, तो 8 का 2 गुना 16 होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हरि है वो 8 दिन का समय ले रहा है इस काम को करने में। क्यों ले रहा है? क्योंकि वो राधे के मुकाबले 2 गुना काम करता है हर दिन। We can see here Radhe is taking 16 days to do a work, so his efficiency is 1/16. As stated in the question, Hari is twice efficient, means 2 गुना काम करने में सक्षम है, then his efficiency is 2/16. So it is apparently seen here total work units are 16 and efficiency of Radhe is 1, because 16 divided by 16 gives efficiency 1 and 16 divided by 8 gives efficiency 2 for Hari. We should always keep in mind always these 3 things, that is EWT. EWT, T for left hand, E for right hand. So we should always remember that multiplication of left hand and right hand gives the work units. We will never forget. Let us take another example. Hari takes 25% less time than Radhe to do a work. Radhe can do a work in 16 days. Then in how many days Hari and Radhe will do the same work together? उदाहरण 2, एक काम को करने में हरि राधे के मुकाबले 25% कम समय लेता है। राधे एक काम को 16 दिन में कर सकता है, तब
कितने दिनों में हरि और राधे मिलकर उसी काम को करेंगे। आइए हल देखते हैं। यहाँ आदमी हरि और राधे हैं। जैसा कि कहा गया है राधे एक काम को 16 दिन में करता है, तो उसकी कार्य क्षमता 1/16 आ जाती है। अब साथ ही ये भी कहा गया है कि हरि राधे के मुकाबले 25% कम समय लेता है। 25% का मतलब होता है 1/4। जब हम 16 का 1/4 निकालेंगे तो 4 ही आएगा। इस प्रकार 16 - 4 बराबर 12 दिन समय लेगा हरि इस काम को करने में। अब जब हमने यहाँ पे देख लिया है कि हरि 12 दिन ले रहा है, राधे 16 दिन ले रहा है, तो हम देखते हैं कि 12 और 16 का एलसीएम 16 नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा। तो हमने 12 और 16 का जो एलसीएम है वो 48 आएगा, और उसको यहाँ पर दर्शाया भी है कि राधे की जो एफिशिएंसी थी वो 1/16 थी। तो 16 को 48 बनाने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है नीचे। जब हमने 3 का मल्टीप्लाई नीचे किया है तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको रेशियो को तो चेंज करना नहीं है। इस प्रकार 3/48, और हरि के केस में 1/12 आना था एक्चुअल में, लेकिन 1/12 को हमें 48 बनाने के लिए हमने 12 गुणा 4 कर दिया, और 4 का जब गुणा नीचे किया है तो 4 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, जिससे रेशियो का संतुलन ना बिगड़े। इस प्रकार ये हो गया 4/48। तो यहाँ से अब हमको स्पष्ट हो गया कि एलसीएम 48 आ गया, यानी टोटल वर्क यूनिट्स 48 आ गया, और राधे की एफिशिएंसी कार्यक्षमता 3 यूनिट्स पर डे आ गई, हरि की कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे आ गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि हरि और राधे की संयुक्त कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी 3 + 4 मिला के 7 यूनिट्स पर डे आ जाती है। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि 48 यूनिट्स यानी 48 यूनिट का मतलब अगेन मैं कह रहा हूँ इकाई। ये हमें ध्यान रखना है। अगर दिन दिया गया है तो दिन ही आएगा, घंटा दिया गया है तो घंटा आएगा, मिनट दिया गया है तो मिनट आएगा, और कार्य के क्षेत्र में यूनिट जो भी कैलकुलेशन बेस्ड आए वही रखना है। तो लिया गया समय हरि और राधे द्वारा 48/7 यानी कि 6 सही 6/7 दिन आता है। Once more we can see in English also. Here Radhe is taking 16 days to do a work, so his efficiency becomes 1/16, and Hari is taking 25% less time than Radhe, so 16 into 25% means 1/4 of 16 equal to 4 days. 16 minus 4 equal to 12 days is the time taken by Hari to do a work, so his efficiency becomes 1/12. Now the LCM of 16 and 12 comes 48. So 48 divided by 12 gives efficiency 4 for Hari, and 48 divided by 16 gives efficiency 3 for Radhe. Now the combined efficiency of Hari and Radhe is 3 + 4 equal to 7. Total work units are 48. So time taken by these both to complete the work is 48 divided by 7 equal to 6 and 6/7 days. Let us take one more example. Rajesh does as thrice work as Shyam does, and Shyam does double work as Hari does. If time taken by Hari to do a work is 16 days, find out in how many days Rajesh and Shyam do the same work together. उदाहरण 3, राजेश श्याम के मुकाबले 3 गुना काम करता है, और श्याम हरि के मुकाबले 2 गुना काम करता है,
यदि एक काम को करने में हरि ने 16 दिन लिए, तब बताएं राजेश और श्याम साथ मिलकर कितने दिनों में उसी काम को करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये गुना वाली जो बात है ये हमारी व्यक्ति की कार्य क्षमता से संबंधित है। तो एक याद रखने वाली बात यहाँ पर ये भी होती है कि इसका एक पैटर्न भी होता है, या तो 1 2 3 पैटर्न होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अगर नीचे से ऊपर की तरफ है तो 1 2 3, 1 नीचे, 2 बीच में, 3 ऊपर जाएगा। यदि पैटर्न ऊपर से नीचे को है तो सबसे पहले 1, बीच में 2 और सबसे लास्ट में 3 आएगा। यानी कि 3 अगर लोग हैं और 3 लोगों के जो कार्य क्षमता है उनका अगर हम एफिशिएंसी रेशियो का ट्रेंड देखें तो ये 1 to 3 या 3 to 1 के क्रम में आता है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Here Hari is taking 16 days to do a work, so his efficiency is 1 by 16. Syam is twice efficient than Hari, so his efficiency becomes 2 by 16. And Rajesh is thrice efficient than Syam, so 3 2 just 6 means 6 by 16 is the efficiency of Rajesh. Now we can see in all the denominator places 16 is there, means all are same, so the LCM is 16 only. Clearly efficiency of Hari is 1, efficiency of Shyam is 2, efficiency of Rajesh is 6. इस प्रकार हम देखते हैं कि combined efficiency of Rajesh is 6 plus 2 equal to 8 units per day. Now total work units are 16. So time taken by Rajesh and Shyam to do this work is 16 divided by 8 equal to 2 days. आइए एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हरि एक काम को 16 दिन में करता है, तो हरि की कार्य क्षमता 1/16 हो जाती है और श्याम हरि के मुकाबले 2 गुना कार्य करने में सक्षम है। इस प्रकार श्याम की कार्य क्षमता 2/16 हो जाती है और राजेश श्याम के मुकाबले 3 गुना कार्य करने में सक्षम है, तो राजेश की कार्य क्षमता 6/16 हो जाती है। जैसा कि सभी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता में हर 16 है, तो हम देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्त 16 आ जाता है, जो कि हमारा कुल कार्य इकाई बन जाता है। इस प्रकार राजेश और श्याम की संयुक्त कार्य क्षमता 6 और 2 मिलाकर 8 हो जाएगी। कुल कार्य इकाई 16 है। 16 विभाजित 8 करने से 2 दिन का समय आ जाएगा, जिसमें राजेश और श्याम इस कार्य को पूरा कर लेंगे। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। 15 men working 8 hours a day can do a work in 20 days. 20 men working for 10 days must work for how many hours a day to complete the same work? उदाहरण 4 है ये। 15 आदमी हर दिन 8 घंटा काम करते हुए एक काम को 20 दिन में करते हैं। 20 आदमी उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करें? जैसा कि मैंने सेकंड सेशन के
दौरान पहले भी बताया था कि समय बचाने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यानी कि वन सेट ऑफ वर्क इज इक्वल टू अदर सेट ऑफ वर्क, यानी कि एक तरफा कार्य का समुच्चय दूसरे तरफ के कार्य समुच्चय के बराबर होता है। यानी कि हम एक तरफ के सेट में एलिमेंट्स में चेंज करेंगे तो दूसरे तरफ के सेट में भी ये चेंज यानी कि बदलाव प्रभावी होगा। इस प्रकार ध्यान रखना है कि जब हमें मालूम है कि दोनों ही सेट में एक एक काम दिया गया है तो हम उसे W1 W2 की जगह पर नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, ओमिट कर देंगे, मीन्स छोड़ देंगे, लीव कर देंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी पहले वाले सेट में यानी कि W1 वाले में अगर हम देखें तो 20 हमको दिखाई दे रहा है और नीचे वाले में भी हमें 20 दिखाई दे रहा है, तो हम 20 से 20 को भी छोड़ सकते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि ऊपर वाले सेट में हमें 15 दिखाई दे रहा है, नीचे वाले में 10 दिखाई दे रहा है, तो हम देखते हैं कि 15 5 से विभाजित हो सकता है 3 बार और 10 2 बार विभाजित हो सकता है। तो ये काम भी हम पहले ही कर सकते हैं और जो हमने 5 से 10 2 बार विभाजित किया था उस 2 से 8 को भी 4 बार काट सकते हैं। अगर हमको समय बचाने की बारी आई ही है तो हम करीब 60% कार्य सवाल में ही कर सकते हैं। आइए फिर भी देखते हैं। यहाँ पहले सेट में हम देखते हैं कि 15 आदमी हैं और 8 दिन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ये लोग 20 दिन का समय ले रहे हैं। तो M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। मैंने यहाँ पर M1 15 लिया है, D1 20 लिया है, H1 8 लिया है, लेकिन W1 नहीं लिया है क्योंकि दोनों तरफ एक एक दिया हुआ था, इसलिए मैंने पहले ही छोड़ लिया है। मैं 20 भी छोड़ सकता था लेकिन मैंने अभी लिया है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। इस प्रकार मैं दूसरे सेट की बात करूं तो यहाँ पर आदमी 20 हैं, दिनों की संख्या 10 है और वो कितने घंटे का समय पर डे ले रहे हैं ये हमको निकालना है। तो हम देखते हैं कि 15 गुणा 20 गुणा 8 बराबर 20 गुणा 10 गुणा क्वेश्चन मार्क। आमने सामने ही 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा एंड 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। अगेन 2 से 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो हमारे पास इधर बचेगा 3 × 4 यानी 12 और यहाँ पर बचेगा क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दूसरा सेट है W2 साइड वाला, उधर के सेट में जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रतिदिन 12 घंटे काम कर रहे हैं, तब जाके उनका काम हो पाएगा। आइए एक बार फिर से इंग्लिश में देख लेते हैं। Here in first set of work, men are 15, days are 20, hours are 8 and work is 1. And in another set, men are 20, days are 10 and for how many hours they are working it has to be calculated. So we have shown it here, 15 into 20 into 8 equal to 20 into 10 into question mark. Since left hand side and right hand side are face to face, so directly we will strike out 20 by 20 and 15 divided by 5 3 times, 10 divided by 5 2 times,
Again 2 divides 8 4 times. So 3 into 4 equal to 12 hours is the value of question mark. Means in second set 20 men working for 10 days at the rate of 12 hours per day is the requirement to complete the work. Here I have taken one additional example, as I have told in the second session also that if one side W1 is mentioned 1, another side W2 is mentioned 1, then we can omit, means we can leave it, हम छोड़ सकते हैं. But if one side it is given some other value, then we cannot leave it. So in the question itself I have tried to show it that 10 men working 6 hours a day can do half of a work in 20 days. 20 men working for 8 days must work for how many hours a day to complete the 1/4 of a work. पहली बात तो हम क्वेश्चन से क्वेश्चन में ही देख सकते हैं कि जो हमारा पहला सेट है और दूसरा सेट है काम का, उसमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की बात करें तो ऊपर वाले में 20 हमको दिखाई दे रहा है, नीचे भी 20 दिखाई दे रहा है. हम 20 से 20 काट लेंगे. लेकिन जो हमको और दूसरी बात दिखाई दे रही है वो ये है कि हम 8 को 2 से 4 बार काट सकते हैं और 6 को 3 बार काट सकते हैं. और इसके अलावा हमें एक बात और भी ये दिखाई दे रही है कि W1 की जगह पर 1/2 आ रहा है. 1/2 जब आ रहा है तो ये क्या होगा, 3 स्टेपिंग होगी. फर्स्ट स्टेप में 10 men 6 hours into 20 days upon 1/2. So first and third will go on the top in the multiplication. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाफ वाला केस होने से ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1/4 वाले केस में 4 ऊपर चला जाएगा. और सीधी भाषा में अगर हम कहें तो हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि जो 1/4 होता है वो हाफ का 2 times होता है, डबल होता है. सवाल को करने से पहले जो चीज़ें आसान हो सकती हैं उनको पहले ही कर लेंगे तो समय काफ़ी बच जाएगा. ये अतिरिक्त उदाहरण लिया है जिसमें मैंने दर्शाया है 10 आदमी हर दिन 6 घंटा काम करते हुए आधे काम को 20 दिन में पूरा करते हैं. 20 आदमी 1/4 काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करें. मैंने यहाँ पर कार्य के जो 2 समुच्चय के बारे में बात की थी कि अगर कार्य का एक समुच्चय है तो उसके जो एलिमेंट्स यानी तत्व हैं उनमें कोई भी अगर आप बदलाव करेंगे तो दूसरी तरफ के कार्य समुच्चय में जो तत्व हैं उनमें भी अवश्यंभावी बदलाव आएगा. तो इस कड़ी में मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर दोनों सेट में एक एक कार्य दर्शाया गया है तो हम इसे शुरू में ही छोड़ लेंगे. अन्यथा जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया आधा काम और 1/4 काम, ऐसे केस में हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसे आधे वाले को 2 को ऊपर ले लेंगे और चौथाई वाले के 4 को ऊपर ले लेंगे. इस प्रकार हम देखेंगे कि पहले सेट के 2 से दूसरे तरफ का जो 4 है वो 2 बार ही कट जाएगा. फिर भी ऐसे सवाल को करने में गलती ना हो, हमें थोड़ा सा
कैलकुलेशन का सहारा अवश्य ही लेना चाहिए। आइए हल देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट सेट में जो मैन है वो 10 है, डेज 20 हैं, आवर्स 6 हैं, वर्क 1/2 है। और दूसरे सेट में मैन 20 हैं, डेज 8 हैं और आवर्स वो कितने ले रहे हैं ये हमको पता लगाना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस दूसरे सेट में जो काम है वो 1/4 है, 1/4 है। तो जैसा कि हमारा फॉर्मूला कहता है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2, हमने यहाँ पर जो W1 था उसकी जगह पे 1/2 आना था, तो उसके 2 को पहले ही ऊपर ले लिया है, क्योंकि नीचे 1 रह जाने से वही वैल्यू रहेगी। क्योंकि अगर मैं लिखता 10 गुणा 20 गुणा 6/1/2, तो ऐसा करने से मेरे पास क्या होता, ये 3 स्टेप वाली सीढ़ी बनती। तो 3 स्टेप वाली सीढ़ी में पहला और तीसरा ऊपर जाता है और दूसरा नीचे आता है। अगर 4 स्टेप वाली सीढ़ी बनती तो पहला और चौथा स्टेप ऊपर जाता है और दूसरा और तीसरा स्टेप नीचे आता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस 2 को ऊपर ले लिया है और यहाँ 1/4 के 4 को पहले ही ऊपर ले लिया है। इससे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गया। देखिए 2 से 2 बार कट गया 4, और हमने देखा कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पर भी 20 है, तो आमने सामने हम 20 से 20 को भी काट सकते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि 2 से 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये भी कट जाता है। साथ ही साथ आगे भी अगर हम इसी प्रकार से कैलकुलेशन करके देखें तो कैलकुलेशन करते करते हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 5 गुणा 3 बराबर 15। वैल्यू आती है 4 क्वेश्चन मार्क की, और क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो 15/4 यानी कि 3 and 3/4 आवर्स पर डे की निकल के आएगी। आइए एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Here in the first set of work, men are 10, days are 20, hours are 6 and work is 1/2. And in another set, days are 8, men are 20, hours are not known and work is given 1/4. So based on the given formula, we have taken 2 directly on top and 4 on top, and both the side 20 and 20 are strike out easily. Then 2 3s are 6 and 2 4s are 8, and this right side 2 will cut 10 5 times. So 5 into 3 is left on left hand side and 4 question mark is left on right hand side. So 4 question mark equal to 15, then question mark equal to 15 divided by 4 equal to 3 and 3/4 hours per day. Means in the second set 20 men working for 8 days has to work 3 and 3/4 means 3.25 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा इनको, काम को पूरा करने के लिए।
Here's the recap of the previous discussion. I am putting it again and again so that you can see and remember what has been discussed, what we should know. हमने यहाँ पर जो पूर्ववर्ती वार्तालाप है उसको दिखाया है, दर्शाया है बार बार, इसलिए जिससे कि आपको पता रहे कि पहले चरण में किसके बारे में पढ़े थे, दूसरे चरण में किसके बारे में, तीसरे में किसके, चौथे में किसके बारे में। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने के लिए डाला है। Keep on revising previous points pertaining to the topic for better understanding. अच्छी तरह से समझने के लिए जो हमारा टॉपिक है उसके जो पहले के बिंदु हैं उनको रिवाइज करते रहिए, इससे आप अच्छे से चीज़ों को समझते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिवीजन कंटिन्यूज। देखने के लिए धन्यवाद।